Assalamu alaikum and welcome to lecture 13th. As you know, we are discussing investment analysis and portfolio management, and we have covered 12 lectures in our discussion. So let's have a look what we have to discuss today. Today's outline is, first we will recap our earlier lecture, and then we will go to the objectives of security valuation and cost of capital. Then we will cover weighted average cost of capital, and then estimating inputs, discount rates, security valuation and cost of capital, dividend valuation model, cost of equity, cost of preference shares. So first of all, we will recap what we have studied in our earlier lectures. You know, we have discussed investment and investment evaluation techniques, in which we discussed accounting rate of return, payback period, net present value, profitability index, and internal rate of return. We have discussed the assumptions used in these models, the advantages and disadvantages of these models, and formulas used in these in the calculations of each element. And then we have discussed dividend and its assumptions used in the market and practical scenarios about dividends. Now, today's objective of our discussion are to develop a model for the valuation of shares and bonds. To use this model to estimate the cost of equity and the cost of debt. As you know, we have discussed a number of times about the rate of return. In net present value, we have discussed that we have to discount the cash flows, future cash flows, at the rate of return required by the investor. So what is the how to calculate the rate of return? And we have used alternative words for the rate of return. For example, discount rate, required rate of return, margin rate of return, cost of equity. So these are equivalent terminologies, and we can use it in alternative ways. And the last objective is to consider further practical influences on the valuation of securities. So these are the objective of covering this topic, cost of capital. Now let us start the topic of today, and which covers a number of slides and number of topics. The topic is weighted average cost of capital, WACC. Now what is WACC? As you know, we have discussed cost of equity, rate of return. Now what is weighted average cost of capital? Now first of all, we will discuss the definition. The cost of capital for investors is the return that investors require from their investment. This is the simplest definition, and we have discussed this terminology, rate of return, a number of times. So the cost of capital for investors is the return that investors require from their investment. कि जो भी investor invest करने जा रहा है, either in form of shares purchase or in form of debt, यानी कोई भी investor अगर वो लोन भी दे रहा है किसी कंपनी को या किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो एक इन्वेस्टर है जो एक फॉर्म ऑफ कैपिटल दे रहा है इन कंपनीज को. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस. या अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स परचेज कर रहा है किसी कंपनी को, तो वो शेयर्स परचेज करके फंड कर रहा है कंपनी को टू रन देयर ऑपरेशंस और टू रन देयर प्रोजेक्ट्स. तो ये मुख्तलिफ टाइप के फाइनेंसेस हो सकते हैं. अभी हर इन्वेस्टर जो भी जिस फॉर्म में भी अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहा है कंपनी को, उसे एक रिटर्न चाहिए.
तो it is the return that investor require from their investment. Companies must be able to make a sufficient return from their own capital investments to pay the returns required by their shareholders and holders of debt capital. अभी आपको समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, either they can be shareholder or they can be debt holder or loan holder. The cost of capital for investors therefore establishes a cost of capital for companies. तो इसमें आपने देखा कि कंपनीज को ऐसा रिटर्न डिटरमिन करना होता है और इतना अपने प्रॉफिट्स अर्न करने होते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर्स को सफिशिएंट रिटर्न पे ऑफ कर सके. अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक कि उसे एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना मिले. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने मैं हाईलाइट करता हूं. इसमें आपने देखा सफिशिएंट रिटर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन, और ओन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के हर जो इन्वेस्टर है उसका अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जिस पे उसे रिटर्न चाहिए, और पे द रिटर्न्स, इसमें रिटर्न्स है, और required by their shareholders and holders of debt capital. So these are important terminologies. Sufficient return. Companies must be able to make a sufficient return from their own capital investments. यानी कंपनी ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की फॉर्म ली हुई है टू रन देयर प्रोजेक्ट्स एंड टू रन द कंपनीज, तो उनको एक सफिशिएंट रिटर्न अर्न करना होता है. किस काम के लिए? टू पे द रिटर्न्स रिक्वायर्ड बाय देयर शेयर होल्डर्स एंड होल्डर्स ऑफ डेट कैपिटल. इससे क्या एक आपको हिंट मिला कि हर इन्वेस्टर ने डिटरमिन किया होता है अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. तो कंपनीज को इतना सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना है फ्रॉम देयर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कि वो पे ऑफ कर सकें शेयर होल्डर्स को या अपने लोन प्रोवाइडर्स को. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस डेफिनेशन में कि कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म्स हैं उस पर उसको सफिशिएंट रिटर्न अर्न करना होता है और पे ऑफ करना होता है टू इन्वेस्टर्स. और इन दो जितनी भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है उनको क्लब कर लिया जाए और उस पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाए. दैट विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसमें आगे देखते हैं. फॉर ईच कंपनी देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ये फॉर्म्स हैं अभी, यानी किस टाइप के रिटर्न्स हो सकते हैं और किस नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न पे ऑफ करने होंगे. फॉर ईच कंपनी देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज अ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय देयर शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और शेयर प्राइस ग्रोथ. तो इससे आपको यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि जो रिटर्न पे कर रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को वो किस फॉर्म में हो सकती है. नंबर वन, आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और शेयर प्राइस ग्रोथ. So this is our one form of investment and the return कि किस टाइप का रिटर्न हो सकता है. नंबर टू, there is a cost for each item of debt finance. This is a yield required by the lender or bond investor. इसमें क्या हो सकता है? yield, जो कि आम वर्ड्स में इसको डिफाइन किया जाए तो रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द लेंडर और बॉन्ड इन्वेस्टर. और इसमें एक और चीज बताई गई है, ईच आइटम ऑफ डेट फाइनेंस, क्योंकि हम पहले अपने बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फाइनेंस. तो देयर इज अ कॉस्ट फॉर ईच आइटम ऑफ डेट फाइनेंस, और नॉर्मली वो क्या होती है? इंटरेस्ट होती है कि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट होल्डर्स को, अपने फाइनेंसर्स को. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स. वन इज
in the form of shares and another is form of debt. So we move forward from this. Now weighted average cost of capital WACC में इसके हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आए हैं ताकि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो उसके बाद हम उसके हर एलिमेंट को फोकस करके उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. इसमें वही बात हो रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज व्हाट द डेट होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट फ्रॉम द कंपनी. इसमें वही बात हो रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज व्हाट द डेट होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपके इन्वेस्टर्स की, जो आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उसमें से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे. So this is WACC. This is a cost of capital and in turn the required rate. इसी को हम cost of capital बोलते हैं और यही required rate है. लेकिन कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो इसे क्या बोलेगी, weighted average cost of capital, यानी उन्होंने वेट किया हुआ है, क्योंकि एक इन्वेस्टर्स हैं शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड इन्वेस्टर्स आर डेट होल्डर्स, तो उनके जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उन दोनों को क्लब किया है, तो वो क्या बना आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी. वैक की जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है. वैक इक्वल टू के ई मल्टीप्लाई बाय ई प्लस के डी मल्टीप्लाई बाय डी और डिवाइडेड बाय ई प्लस डी. तो इसमें एक एक एलिमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, उसकी क्या मीनिंग है. वैक आपको पता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज द रिक्वायर्ड रेट और इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स की कॉस्ट जो है, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इसको हम यहां पे मेंशन भी कर देते हैं. और ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसको हम एमवी के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएगा आगे चल के कि हम एमवी लिख रहे हैं या ई भी लिख सकते हैं. तो जो भी हम यूज करें वो क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी मार्केट प्राइस. फॉर एग्जांपल शेयर्स की मार्केट प्राइस क्या है. एंड केटी रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ डेट, यानी जो लोन आपको जिन इन्वेस्टर ने लोन दिया हुआ है उनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उनको इंटरेस्ट आप क्या पे कर रहे हैं, उनके साथ क्या एग्री हुआ है. डेट विल बी द कॉस्ट ऑफ डेट. बट इधर ब्रैकेट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इट मस्ट बी ऑलवेज पोस्ट टैक्स. पीछे हम कैश फ्लोज में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रिटर्न्स आएंगे, जो भी आपके पास रेवेन्यूज कंपनी अर्न करेगी या कॉस्ट इंकर करेगी, दैट मस्ट बी आफ्टर टैक्स. यानी आपने कैश फ्लोज जनरेट किए लाइन बाय लाइन, आपने हर ईयर बाय ईयर लाइन आइटम वाइज कैश फ्लोज को तरतीब दे दिया. उसके बाद उस पर आप टैक्स अप्लाई करेंगे और आफ्टर टैक्स जो आपके पास कैश फ्लोज आएंगे उस पे आप डिस्काउंट रेट अप्लाई करेंगे. तो यहां पे भी कॉस्ट ऑफ डेट जो है डेट मस्ट बी ऑलवेज पोस्ट टैक्स, यानी टैक्स लगने के बाद जो कॉस्ट ऑफ डेट आएगी डेट विल बी यूज्ड इन द वैक फॉर्मूला. एंड डी इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कि लोन की जो मार्केट वैल्यू है वो हम अगले अपने लेक्चर्स में आगे डिस्कशंस में डिस्कस करेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह डिटरमिन होती है. और इन तमाम एलिमेंट्स को हम अभी डिटेल में आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी इज मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसको भी हम डिटेल में अपने लेक्चर्स में जब हम न्यू वेंचर्स की डिस्कशन में जाएंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे. बट इन द केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी इज मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसका फॉर्मूला हम जब डिस्कशन उसकी शुरू होगी तो उस पर डिस्कस करेंगे. नाउ
व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि आपके पास सामने पिक्चर में शो हो रहा है कि एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या आ रहा है, इट इज कैलकुलेटेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, एमवी क्या शो कर रहा है, मार्केट वैल्यू। It is calculated that the market value of shares is directly related to the expected future dividends. यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन इसके हम डिटेल में जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स क्या हो सकते हैं। डिविडेंड्स को जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसमें हमने डिविडेंड्स की डेफिनेशन और डिविडेंड्स का जो कंपनी डिटरमिन करती है किस तरह वो पे ऑफ करेंगी, क्या क्या उसके अंदर वो एलिमेंट्स को देखेंगे और डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन में जाएंगे तो उसके अंदर उसकी फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ डेट में ए आ रहा है, ए को हम जब कॉस्ट ऑफ डेट की डिस्कशन शुरू होगी, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन द ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या क्या उसकी कैलकुलेशंस के तरीके हैं। तो इन ब्रॉडर टर्म द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है और आज के लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज कैलकुलेटेड दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स। So these are the elements of cost of capital, WACC. अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको देख लेते हैं। व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अपने अगले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रेफर्ड शेयर्स भी कंपनी मार्केट में इशू करती है और प्रेफर्ड शेयर के क्या राइट्स होते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं और उनका डिविडेंड किस तरह डिटरमिन होता है और डिविडेंड की किस तरह वो नॉर्मल शेयर होल्डर से डिफरेंट होता है। व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स देयर इज आल्सो अ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली ये भी एक फॉर्म ऑफ फाइनेंस है और कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और उसने अपने फंड्स को रेज किया है थ्रू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसकी भी लाजमी बात है जो उसमें प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं उनका भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, जैसे कि नॉर्मल शेयर होल्डर्स का है और नॉर्मल डेट होल्डर्स का है। और ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो सकती है, विच इज द डिविडेंड यील्ड रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर। इसमें डिविडेंड का वर्ड भी आया है और यील्ड का वर्ड भी आया है। इट इज द डिविडेंड यील्ड रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, यानी जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने डिविडेंड वाले लेक्चर में कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनका क्या जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है और वो लाजमी पे ऑफ करना होता है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन को आप लोग को लाजमी पे करना होता है कंपनी को। अगर नहीं पे करेंगे तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे वो लीगल उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इसी तरह जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका राइट भी फिक्स है और वो उन्हें भी ये राइट लाजमी पे करना होता है कंपनी को। अगर नहीं पे करते तो उसका क्या होता है कि वो कंपनी अकोमुलेट करती रहती है और जब भी पे करेगी तो उसे पिछला डिविडेंड भी इकट्ठा पे करना होगा। तो इट इज अ डिविडेंड यील्ड रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ए कंपनी इज द रिटर्न दैट इट मस्ट मेक ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, so that it can afford to pay its investors the returns that they require. इसको दोबारा हम हाईलाइट कर लेते हैं। It can afford to pay its investors the return they require, यानी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके चाहिए लाजमी, उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि हर इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्ट करता है जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो उसका एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा उसे रिटर्न मिल जाएगा या इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट ना करे।
या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें। तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी इज द रिटर्न दैट इट मस्ट मेक ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट सो दैट इट कैन अफोर्ड टू पे इट्स इन्वेस्टर्स द रिटर्न्स that they require. It is important to note. Now, the cost of capital for investors and the cost of capital for companies should theoretically be the same. However, they are different because of the differing tax positions for investors and companies. जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस देखी थी, उसकी डिटेल्स देखी थी कि जो भी कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं दैट शुड बी आफ्टर टैक्स। तो इसी तरह हर कंपनी जब भी प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने जा रही होती है उसमें वो अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करती है। इसी तरह कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने जा रहा होता है तो वो भी अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो जब इन्वेस्टर अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है थ्रू डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, तो उसमें वो अपना रेट ऑफ रिटर्न जो डिटरमिन करेगा, जो टैक्स रेट अप्लाई करेगा वो होगा जो उस पे एप्लीकेबल है इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉस। और जो कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है तो उसके टैक्स रेट ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे फ्रॉम द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। जैसे पाकिस्तान में भी हर जो इंडिविजुअल्स हैं उसका टैक्स रेट स्लैब्स बनी हुई हैं, उस पर लाइन बाय लाइन और उसकी इनकम के मुताबिक उस पर टैक्स अप्लाई होता है। और कंपनीज पे आजकल जो रेट चल रहा है वो है डेट इज 35%। तो कंपनी की जो कैश फ्लोज बनाएगी और उस पर जो आफ्टर टैक्स अप्लाई करेगी कैश फ्लोज पे, नेट कैश फ्लोज पे, वो उसे क्या यूज करना होगा 35%। तो जो टैक्स पोजीशंस हैं उसकी वजह से उस पर डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट जब डिफरेंट आएंगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी जो डिटरमिन करते हैं उसमें एक टैक्स का भी इफेक्ट होता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट टैक्स पोजीशंस की वजह से दोनों के रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न डिफरेंट हो सकते हैं। एक है इन्वेस्टर और एक है कंपनी, जो दोनों के डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं क्योंकि दोनों के टैक्स रेट्स डिफरेंट है। Now, the cost of capital for investors is measured as a pre-tax cost of capital. This is written ignoring taxation. क्योंकि जब हमने खुद कह दिया कि cost of capital is the return is measured as pre-tax. Pre-tax का वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया pre-tax cost of capital. Pre-tax का क्या मतलब है? टैक्स लगने से पहले। तो ये प्री टैक्स जो कह रहे हैं इट इज यानी ये जो रेट होगा इट मस्ट बी प्री टैक्स, यानी टैक्स लगने से पहले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें हमने टैक्स को इग्नोर कर दिया है। द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ कैपिटल। क्या है? एवरेज कॉस्ट। The weighted average cost of the capital is the average cost of all sources. इसमें sources important है कि कौन कौन सी आपके पास sources हैं, उसके मुताबिक ही आप rate of return determine करेंगे। This average is weighted. जैसे कि हमने पीछे फॉर्मूले में भी देखा था कि जो भी sources of finance हैं either shares और debt, उसका हमने weight किया था। जो हमने फॉर्मूला यूज किया था कि पहले हमने कॉस्ट ऑफ शेयर्स लिया, उसको मल्टीप्लाई और उसके रेट ऑफ रिटर्न जो हमने पहले हमने लिया, जैसे कि हमने जो अपनी पिछली स्लाइड में फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें हमने पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई किया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के साथ, और फिर जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकाली और उसको मल्टीप्लाई किया उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। तो हमने वेट किया। तो वेट मींस एवरेज करना, और एवरेज लेके जो टोटल कॉस्ट निकलेगी डेट वुड बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस एवरेज इज वेटेड एंड टू अलाउ द relative proportions of the different types of capital in the company's capital structure. This average is weighted
वेटेड जो है यहाँ पे दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आप सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं, जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज कर रहे हैं उसको वेट किया जाएगा। लेकिन उसके ब्रॉड कैटेगरीज क्या होंगी? दो, नंबर वन इक्विटी, नंबर टू डेट। इक्विटी में भी डिवीजन आपने पीछे देख ली, जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और डेट की हम बाइफिकेशन बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड होल्डर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स एंड लोन्स, इस तरह की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। तो जो भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंपनी यूज कर रही है उसका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है बाय द फाइनेंसर, उसको हम एवरेज करेंगे टू अलाउ द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इट इज इंपॉर्टेंट कि हाउ इट इज फॉर्मुलेटेड, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसमें इक्विटी है, उसमें डेट है, डेट की नेचर क्या है, और उन डेट की नेचर के मुताबिक उसका रिटर्न डिटरमिन होगा। सो दिस एवरेज इज वेटेड to allow the relative proportions of the different types of capital in the company's capital structure. One approach to the evaluation of capital investments by companies is that all their investment projects should be expected to provide a return equal or in excess of the WACC. इसको हम दोबारा देख लेते हैं। वन अप्रोच टू द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज इज दैट ऑल देयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रिटर्न इक्वल टू और इन एक्सेस ऑफ द WACC। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हर इन्वेस्टर उस वक्त इन्वेस्ट करता है जबकि उसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो रिटर्न उसे बाद में मिलेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और एट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उसे रिटर्न मिल रहा होगा, डेट मस्ट बी इक्वल टू आइदर एक्सपेक्टेड रिटर्न और मोर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसी वक्त इन्वेस्ट करेगा। अगर वो उसकी जो रिटर्न्स हैं वो लेस देन 0 हैं या लेस देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है तो वो फिर उस सूरत में इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे जहां पे उसका रिटर्न इज इक्वल टू और in excess of WACC, यानी weighted average cost of capital. If all their investment projects earn a return in excess of the WACC, the company will earn a sufficient returns overall to meet the cost of its capital and provides its investors with the returns they require. ये obviously बात है कि जब कंपनी अर्न करेगी और जितना रिटर्न अर्न कर रही है उसी के मुताबिक वो पे ऑफ करेगी। अगर कंपनी ने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें उसका रिटर्न कम है तो वो उतना पे ऑफ नहीं कर पाएगी, और जब पे ऑफ नहीं कर पाएगी तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि हर इन्वेस्टर अपना जो एस्टिमेटेड रिटर्न है उतना अर्न करना चाह रहा है। दिस प्रिंसिपल इज ऑफन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। The general rule is that when capital investment projects are evaluated using the NPV method, the cost of capital to be used is the WACC, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कंपनी को जो इन्वेस्टर है उसको क्या यूज करना है, उसको यूज करना है उसका रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो क्या होना चाहिए कंपनी की केस में? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। This is on the assumption that a capital project will not alter the risk profile of the company's investments, and the risk with the new project is similar to the risk with the rest of the company's business operations. ये ज़रा टेक्निकल बात यहाँ पे हो गई है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कंपनी ने डिटरमिन किया अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कैलकुलेट किया है या एज्यूम किया है in consideration of certain risk elements, कि कंपनी को ये रिस्क है, वो इस तरह की इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, उसका टैक्सेशन का रेट ये है, इन्फ्लेशन का रेट ये है, उनको देखते हुए कंपनी डिटरमिन करती है अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न WACC। और जो प्रोजेक्ट
में इन्वेस्ट करने जा रही है कंपनी, और अगर उस प्रोजेक्ट के लिए उसकी कैश फ्लोज जब वो डिटरमिन करती है, कैलकुलेट करती है, उसमें जब वो वैक यूज करती है, तो वैक वो यूज जब अपना कर रही है तो वो ये अज्यूम करती है कि प्रोजेक्ट के रिस्क और इस वैक में जो रिस्क यूज हुए हैं वो सेम है। इट मीन्स कि अगर कंपनी कंट्री ए में ऑपरेट कर रही है, उसने वैक अपना डिटरमिन किया हुआ है 10%, और अगर वो इन्वेस्टमेंट जो करने जा रही है कंपनी वो कंट्री ए में ही लगा रही है, तो वो वही वैक यूज कर लेगी। लेकिन अगर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंट्री जेड में, तो वहां के रिस्क, वहां के इन्फ्लेशन रेट, वहां का टैक्स रेट वुड बी डिफरेंट देन द कंट्री ए। तो उस सूरत में कंपनी को अपना वैक एडजस्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ और इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क प्रोफाइल ऑफ कंट्री जेड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वही बात हुई है कि कंपनी जब भी इन्वेस्ट करने जाती है प्रोजेक्ट्स में, तो उसको ये कैलकुलेट करना होता है, ये देखना होता है कि जो प्रोजेक्ट इन्वेस्ट हो रहा है उसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो सेम है इन अकॉर्डेंस विद द वैक, और बाकी यानी जो ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी के उसके मुताबिक ही है, क्योंकि जो कंपनी के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके मुताबिक ही वैक बने, और जो नया प्रोजेक्ट है वो भी सेम रिस्क बेसिस पे बने, तो वही कंपनी वैक यूज कर लेगी। अगर चेंज हो रहा है तो अपनी कंपनी को अपना वैक एडजस्ट करना होगा इन अकॉर्डेंस विद द न्यू रिस्क identified by the company. The principle is often applied when the financing for a new capital investment changes the company's WACC. On the assumption that a capital project will not alter the risk profile of the company's investment, the NPV of the new project should be calculated using the new WACC that will exist after the project has been undertaken and financed. तो यहाँ पे वो बात दोबारा रिपीट हुई है जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आपको एग्जांपल भी दे दी कि कंट्री ए से कंपनी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस रन कर रही है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कंट्री जेड में, यानी अपनी कंट्री को चेंज कर रही है, तो फिर उसे जो एग्जिस्टिंग वैक है वो यूज नहीं करना होगा, बल्कि कंट्री जेड के रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक अपने वैक को ऑल्टर करना होगा। और जो वो ऑल्टर करेगी तो उस जो नया वैक आएगा उसको यूज करेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन में, यानी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में। और इसमें एग्जांपल क्या थी कि कंट्री जेड के टैक्स रेट, उसका इन्फ्लेशन रेट, उसके बिजनेस रिस्क, उसके इंटरेस्ट रेगुलेशंस डिफरेंट है एज कंपेयर टू कंट्री ए, तो लाजिम बात है उसका जो रिस्क प्रोफाइल है चेंज हो गया, तो वैक जो वो एग्जिस्टिंग वैक है that should be changed in accordance with the terms or in accordance with the risk profile of the country Z. तो ये चीजों को कंसीडर करना होगा कि कंपनी को अपना नई इन्वेस्टमेंट, अगर वो रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है तो उसमें कंपनी को अपना न्यू वैक कैलकुलेट करना होगा। An alternative approach to the evaluation of capital investment project which does not use these assumptions is the adjusted present value method और APV method। यहाँ पे एक नई बात आ गई, इसको हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच यानी कि जो अब हमने बात की कि कंपनी को नया वैक डिटरमिन करना होगा फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट विच हैज डिफरेंट रिस्क एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस या एग्जिस्टिंग वैक, तो उसमें क्या होगा, नया वैक कैलकुलेट करना होगा। ऑल्टरनेटिव क्या है इसका? एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच टू द एवेल्युएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विच डज नॉट यूज दीज अजम्पशंस इज द एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अगर नया वैक कंपनी नहीं कैलकुलेट करती तो उसमें एडजस्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से वो अपने इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट कर लेगी। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक नया तरीका है और ये बात को चेंज कर देगा, तो इस वजह से हम इस एपीवी को आफ्टर डिस्कसिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट
और वैक को जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम एपीवी की डिटर्मिनेशंस और उसके कैलकुलेशंस पे जाएंगे। इसमें यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज हो रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उन सारी जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसको हम वेट कर रहे हैं, उसको एवरेज कर रहे हैं और एवरेज करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, तो उस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिस का हम में डिफ्रेंसिएशन भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसका रिटर्न डिफरेंट है। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट है, और जो डेट होल्डर्स हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट है। नाउ वी विल कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ डेट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या एलिमेंट्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट में क्या एलिमेंट्स आते हैं, और इसका कंपैरिजन करके हमें डिफरेंशिएशन उसकी मालूम हो जाएगी। फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंपनीज द कॉस्ट ऑफ देयर इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट ऑफ देयर डेट कैपिटल। दिस इज बिकॉज equity investment in a company is always more risky than investment in a debt capital। तो इधर जो दो एलिमेंट्स हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे वो क्या थे, इक्विटी के और दूसरा डेट कैपिटल के। ये ब्रॉड अगर हम टर्म्स में देखें तो कंपनी दो ही मोड यूज करती है, नंबर 1 इक्विटी एंड सेकेंडली डेट। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं जो कि हम आगे देख भी लेंगे, लेकिन ये दो ब्रॉडर टर्म्स हैं जिसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 इक्विटी एंड डेट कैपिटल। और इसका जो कॉस्ट है इक्विटी की या कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है तो वो डिफरेंट क्यों होता है, या उनका रिटर्न चेंज क्यों होता है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इज ऑलवेज मोर रिस्की, यानी उसमें रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेट कैपिटल ऑफ द सेम कंपनी। ये हम बात पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि डेट होल्डर का रिटर्न जो रिक्वायर्ड रिटर्न है डेट इज इंटरेस्ट, और अगर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ही कैन गो टू द कोर्ट, और कोर्ट के थ्रू वो अपना रिटर्न को कंपनी से मांग सकते हैं। लेकिन जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसके केस में जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं तो उसके केस में शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न है डेट इज डिविडेंड और अ प्राइस इंक्रीज इन प्राइस। तो ये रिटर्न होता है इक्विटी होल्डर या शेयर होल्डर्स का, नॉर्मल शेयर होल्डर्स का। तो वो रिटर्न कौन डिटरमिन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि हम डिविडेंड में डिस्कस कर चुके हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमिन करते हैं उनकी बेसिस क्या होती है कि कंपनी या तो इधर डिविडेंड पे करते या अपने प्रॉफिट्स को रिटेन कर ले फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। तो इक्विटी होल्डर्स को रिटर्न पता नहीं होता कि अभी डिविडेंड मिलेगा या बाद में उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी उससे रिटर्न मिलेगा। तो एक एलिमेंट है, इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि क्यों डिफरेंट होता है, तो वो ये है कि दिस इज बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी इज ऑलवेज मोर रिस्की देन इन्वेस्टमेंट इन द डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ द सेम कंपनी। इन एडिशन, from a company's perspective, the cost of debt is also reduced by the tax relief on interest payments. एक और रीजन आ गया यहाँ पे, this makes debt finance even lower than the cost of equity. यहाँ तो हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या फर्क है। यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कंपनीज के पर्सपेक्टिव से कि इन एडिशन फ्रॉम ए कंपनीज पर्सपेक्टिव द कॉस्ट ऑफ डेट वो चीपर है। वो चीपर क्यों है या वो लो क्यों है,
क्योंकि उस पे कंपनी अर्न कर रही है टैक्स रिलीफ, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो टैक्स अलाउबल एक्सपेंस होता है। दो कंपनी उस पे एक रिलीफ अर्न कर रही है, उस रिलीफ अर्न करने की वजह से कंपनी के पर्सपेक्टिव में कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो एक और रीजन हमें समझ आ गया। द इफेक्ट ऑफ मोर डेट कैपिटल and higher financial gearing on the WACC is considered in more detail later। क्योंकि अगर हम कंपनीज के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट इज चीपर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कॉस्ट ऑफ डेट जो कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि कंपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट लेके आए वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ डेट की फॉर्म, यानी डेट कैपिटल की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी लोन्स उठाए मुख्तलिफ बैंकों से, बॉन्ड्स से या डिबेंचर्स के थ्रू लोन उठाए और अपनी कंपनी को रन करे, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी को फाइनेंशियल गियरिंग भी देखनी होती है और उसका वैक पे भी इफेक्ट आता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हम वैक की जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी थी कि व्हाट इज वैक और वैक की क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के पर्सपेक्टिव में और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव में, वो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। नाउ वी विल कम टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट हो रहा है कि चार्ट में सबसे पहले आ रहा है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड्स को हम बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन आवर प्रीवियस लेक्चर, और यहाँ पे हम डिविडेंड वैल्यूएशन की जो टेक्निक्स हैं और क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें है थ्योरेटिकल मॉडल, फिर है विद ग्रोथ थ्योरेटिकल मॉडल, और assumptions behind the dividend valuation model using the dividend valuation model। तो डिविडेंड की ये जितने भी टेक्निक्स हैं और कैलकुलेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ साथ फिर हम जो जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे डेट वुड बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि शेयर होल्डर्स क्या 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 एस्टिमेटेड रिटर्न्स होते हैं, वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि जब हम इंडिविजुअल बारी बारी तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके कॉस्ट को, उसके मार्केट वैल्यूज को, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यूज को और रिटर्न्स को डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम वैक सही डिटरमिन कर सकते हैं। तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आएंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल लिंक है, तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे आएंगे। उसमें शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे कि शेयर होल्डर्स किस तरह अपना रिटर्न डिटरमिन करते हैं। डिविडेंड उसमें कुछ एग्जम्पशंस यूज करेंगे कि अगर कंपनी सेम डिविडेंड ओवर द ईयर्स और ओवर द पीरियड्स पे कर रही है, तो उसमें क्या होता है, अगर उसमें ग्रोथ का एलिमेंट आ रहा है डिविडेंड्स में, रिटर्न्स में, तो उसको किस तरह टैकल करना है। डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ फ्रॉम पास्ट डिविडेंड एंड गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल एक बहुत नोन और बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो कि यूज होता है प्रैक्टिकल वैल्यूएशन में यूज होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। एंड देन वी विल गो टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड कॉस्ट ऑफ, देन इन लास्ट वी विल कंसीडर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम ये डिस्कस कर चुके होंगे देन वी विल गो टू कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि दो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी, इक्विटी होती है सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेकेंडली डेट कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में हम क्या टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे और उसमें जो मुख्तलिफ फॉर्म्स के डेट हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, इररिडीमेबल, रिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इसके साथ साथ हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कस कर रहे थे, उसमें कैश फ्लोज को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं उसका जो रेट है
अगर वो पर एनएम है तो कैश फ्लोज भी पर एनएम की फॉर्म में होने चाहिए। अगर कैश फ्लो सेमी एनुअली आ रहे हैं तो जो डिस्काउंट रेट है वो भी क्या होना चाहिए, सेमी एनुअली। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करने हाफ ईयरली के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे बाद में इस टॉपिक के अंदर। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के एफिशिएंट मार्केट्स के कौन सी होती हैं और उनके क्या फैक्टर्स होते हैं, प्रैक्टिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग शेयर प्राइसेस, एफिशिएंट मार्केट्स एंड द 3 डिग्रीज ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डेफिनेशन और उसकी यील्ड कर्व को, जिसका ये एक फ्लो चार्ट था, यानी किस वन बाय वन हम तमाम एलिमेंट्स पे जाएंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट एस्टिमेटिंग इनपुट्स डिस्काउंट रेट्स कि जो डिस्काउंट रेट के हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में टर्मिनोलॉजीज यूज करते रहे हैं और ये भी आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ जो डिस्काउंट रेट है उसको हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और या वैक। तो डिस्काउंट रेट उसको हम कॉमन वर्ड्स में डिस्काउंट रेट यहाँ पे बोल रहे हैं, उसके इनपुट्स को अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, बिकॉज जो डिस्काउंट रेट होता है उसकी बेसिस पे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करते हैं। तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल इंग्रेडिएंट। कैश फ्लोज का तो हमें पता चल गया कि कैश फ्लोज हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, रेलेवेंट कैश फ्लोज उठाते हैं, कैश फ्लोज के अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट किस तरह डालते हैं, टैक्स को किस तरह अप्लाई करते हैं, आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज को किस तरह निकालते हैं, नॉन कैश आइटम्स को किस तरह निकालते हैं और कौन कौन से नॉन कैश आइटम्स हो सकते हैं। तो कैश फ्लोज की तो हमने बात डिटेल में कर ली थी। नाउ फिर जो डिस्काउंट रेट होता है वो किस तरह डिटरमिन होता है, क्योंकि अगर डिस्काउंट रेट आप इन्वेस्टर ने गलत यूज कर लिया तो उससे उसकी वैल्यूएशन गलत हो जाएगी और वो जो रिजल्ट निकालेगा उससे वो ये एवेल्युएट नहीं गलत एवेल्युएट कर लेगा कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी या नहीं करनी। तो इट इज अ वेरी क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। Errors in estimating the discount rate or mismatching cash flows and discount rates can lead to serious errors in valuation. यहाँ पे errors की बात हो रही है कि errors जो हैं वो क्या उसके क्या impact हो सकते हैं। Errors in estimating the discount rate or mismatching cash flows and discount rate, ये दो चीजें हैं कि cash flows और डिस्काउंट रेट। कैश फ्लोज आपने सही डिटरमिन कर लिए, लेकिन अगर डिस्काउंट रेट में कोई मिस्टेक हो गई तो आपकी वैल्यूएशन यूजलेस हो जाएगी। और अगर आपने कैश फ्लो सही डिटरमिन ना किया और डिस्काउंट रेट सही यूज कर लिया तो फिर भी आपकी वैल्यूएशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो और अगर दोनों आपने सही यूज कर लिए लेकिन मिसमैच है दोनों में, तो फिर भी उसका रिजल्ट जो होंगे दैट विल बी यूजलेस। तो एरर्स को और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिसमैच की, उन दोनों को हमने बहुत क्रिटिकली एस्टिमेट यानी जज करना होगा, क्रिटिकली उसको एस्टिमेट करना होगा ताकि हमारे जो वैल्यूएशन रिजल्ट्स हैं वो सही रहें। एट एन इनिशिएटिव लेवल the discount rate used should be consistent with both the riskiness and type of cash flows being discounted. ये हमने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे कि riskiness and type of cash flow, जो डिस्काउंट रेट डिटरमिन होगा वो एक तो डिटरमिन होगा रिस्कीनेस को देख के, एंड सेकेंडली जो कैश फ्लोज है टाइप ऑफ कैश फ्लोज कि कैश फ्लो जो जनरेट हो रहे हैं वो एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है। तो जब टाइप ऑफ कैश फ्लोज डिफरेंट होगी तो डिस्काउंट रेट को भी उसके साथ मैच करना होगा, वो भी क्वार्टरली रेट यूज करना होगा। अगर सेमी एनुअली कैश फ्लोज हैं तो सेमी एनुअली डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना होगा। और रिस्कीनेस को देखना होगा कि जो जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उसके एलिमेंट्स को देखते हुए आपको
को अपना डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करना होगा। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के रिस्कीनेस और टाइप ऑफ कैश फ्लोज को आप बहुत क्रिटिकली चेक कर लें और अपने डिस्काउंट रेट को इन दोनों चीजों को देखते हुए डिटरमिन करें। नाउ इक्विटी वर्सेस फर्म। If the cash flows being discounted are cash flows to the equity, the appropriate discount rate is cost of equity. अगर कैश फ्लो जो डिस्काउंट कर रहे हैं, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन में आप लेके आ रहे हैं, आर कैश फ्लोज टू द इक्विटी, यानी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है, जो कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो इक्विटी है, यानी उसके जो फाइनेंसर है वो शेयर होल्डर्स हैं। तो कैश फ्लो इस तरह के कैश फ्लोज का क्या कहेंगे हम? कैश फ्लोज टू द इक्विटी, शेयर होल्डर्स। और इसमें जो एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कॉस्ट टू द शेयर होल्डर्स। इफ द कैश फ्लोज आर कैश फ्लोज टू द फर्म, यानी अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं एक पूरी कंपनी को देखते हुए, यानी उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या आ सकते हैं? उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ सकते हैं, शेयर्स भी आ सकते हैं या इक्विटी जिसको बोलते हैं वो भी आ सकते हैं, प्लस उसमें डेट भी आ सकता है। तो इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फर्म लेवल पे और कंपनी लेवल पे ये भी हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कैश फ्लोज टू द फर्म। और इसमें अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या होगा? द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट वुड बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप जानते हैं दोनों एलिमेंट्स हैं, इक्विटी का एलिमेंट भी है, डेट का एलिमेंट भी है, और उनको जब एवरेज कर लेते हैं वो क्या बन जाता है? वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसमें करेंसी क्या है? द करेंसी इन विच द कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड शुड ऑल्सो बी द करेंसी इन विच द डिस्काउंट रेट इज एस्टिमेटेड। यानी कैश फ्लोज अगर पाकिस्तानी रुपीस में आप डिटरमिन कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट रेट होगा वो भी पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको देखते हुए डिटरमिन होगा। यानी पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, पाकिस्तान में जो रिस्क्स हैं और जो इन्फ्लेशन है, टैक्स है, उसको देखते हुए डिस्काउंट रेट डिटरमिन होगा। और अगर आपके कैश फ्लोज हैं डॉलर्स में, पाउंड्स में, तो फिर डिस्काउंट रेट ऑटोमेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। तो करेंसी, जिस करेंसी में कैश फ्लोज आ रहे हैं उसी करेंसी के मुताबिक डिस्काउंट रेट इन्वेस्टर को डिटरमिन करना होगा। नॉमिनल वर्सेस रियल। If the cash flows being discounted are nominal cash flows, that is reflect expected inflation, the discount rate should be nominal. ये वो टॉपिक है जो कि हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में जिसको डिटेल में डिस्कस किया था। इसको सिर्फ हम रिपीट हल्का सा कर लेते हैं कि जब हमारे कैश फ्लोज, क्योंकि हर कंट्री में इन्फ्लेशन होता है और अगर किसी प्रोजेक्ट को हम एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो उसमें फ्यूचर के कैश फ्लोज भी होते हैं। यानी आप अगर टाइम जीरो पे अभी स्टैंड कर रहे हैं और आपको कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, तो हर ईयर बाय ईयर को आपको जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसके हर ईयर के इन्फ्लेशन को देखना होगा कि अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो जो 100 रुपये आप ईयर एंड फर्स्ट ईयर के एंड पे अर्न कर रहे हैं वो आपको दैट इज नॉट कंपेरेबल विद द 100 रुपीज ऑफ टुडे, क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ चुका है। आज के 100 रुपए में जो आप चीज खरीद सकते हैं एक साल के बाद वो 100 रुपए में आप चीज नहीं खरीद सकते क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है। तो उन कैश फ्लोज को आप एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के साथ और उसको नॉमिनल, जिसको हमने नॉमिनल रेट कैश फ्लोज बोला था, या फिर उसको हमने ये बोला था कि
ये नॉमिनल कहलाएंगे या इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज कहलाएंगे। तो हर ईयर के एंड पे जो उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट आप डाल देंगे वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज या मनी कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज। तो जो डिस्काउंट रेट होना चाहिए दैट शुड मैच द कैश फ्लोज, कि कैश फ्लोज जब आपके नॉमिनल हैं तो आपका डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए। और अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं डालते, रियल कैश फ्लोज में रियल टर्म्स में देखते हैं, तो फिर आपका डिस्काउंट रेट भी रियल होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका जो डिस्काउंट रेट है दैट शुड मैच कैश फ्लोज। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि कैश फ्लोज में भी हमने टच किए हैं और यहाँ पे डिस्काउंट रेट में भी टच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को मैच होना चाहिए। नंबर वन कैश फ्लोज को, नंबर टू डिस्काउंट रेट को। जब दोनों ये मैच हो जाएंगे और दोनों आपको कंसीडर दोनों के मैच हो जाएंगे और दोनों के रिस्क को आप बराबर कर लेंगे, तो फिर आप अपनी जो वैल्यूएशन है और जो इसके रिजल्ट्स हैं उस पर रिलाई कर सकते हैं। What goes into the discount rate? The discount rate should reflect the cost of capital or the cost of funds used to finance the business. यहाँ पे वही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात की गई है कि जिस तरह आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, अगर कंपनी जो उसका फाइनेंस है सोर्स का वो है शेयर्स या इक्विटी, और उसमें डेट का भी एलिमेंट है, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या आ गया, इक्विटी एंड डेट। तो इन दोनों को देखते हुए डिस्काउंट रेट को डिटरमिन करना होगा ताकि डिस्काउंट रेट रिफ्लेक्ट करे सोर्सेज ऑफ फंड्स to run the business. An investment is not acceptable unless it generates a return sufficient to cover the cost of funds. क्या बात हुई कि ऐसी इन्वेस्टमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट इतने अर्निंग्स जनरेट कर ले जो कि कॉस्ट ऑफ फंड को कवर कर सके। अगर कोई इन्वेस्टर एनपीवी का मेथड यूज कर रहा है टू एवेलुएट इन्वेस्टमेंट्स, तो वो कब इन्वेस्ट करेगा, जब उसकी एनपीवी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 या 0, यानी जबकि उसे पॉजिटिव एनपीवी मिल रही होगी तो फिर वो इन्वेस्ट करेगा। अगर उसके एनपीवी के रिजल्ट्स नेगेटिव में आ रहे हैं तो इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आउटकम है इज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और इसी तरह अगर वो काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यूज कर रहा है तो इन्वेस्टर उसे इन्वेस्ट करेगा जब उसके जो आउटकम नहीं कर रहा है वैल्यूएशन का डेट इज इक्वल टू और मोर देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां भी वही बात है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस इट जनरेट्स अ रिटर्न सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ फंड्स। हर इन्वेस्टर की यही ख्वाहिश होती है और इसी को देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट करता है। नाउ we will come to dividend valuation model। कि डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो कि हम अपनी पिछली क्लास में या लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनीज अपने डिविडेंड्स को किस तरह डिटरमिन करती है, कब डिविडेंड पे करती है और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या उसको कंसीडर करने होते हैं। यहाँ पे हम उसकी कैलकुलेशन को देखेंगे कि डिविडेंड्स की बेस पे मार्केट वैल्यू किस तरह शेयर्स की डिटरमिन की जाती है या फिर उसका रिटर्न किस तरह डिटरमिन किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वो उसके लिए रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड होता है या फिर इंक्रीजिंग शेयर प्राइस। द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल स्टेट्स दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर और अदर सिक्योरिटी is equal to the present value of future expected cash flows from the security, discounted at the investor's required rate of return।
ये वही डेफिनेशन है जो कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी देख चुके होंगे कि हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज को उठाते हैं, उनको डिस्काउंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू के पे किस तरह लेके आते हैं कि जब हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न, वो यूज करते हैं और उसको यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिटरमिन करते हैं और उसके बेस पे वो प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर और अदर सिक्योरिटी इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर expected cash flows from the security discounted at the investor's required rate of return. In terms of a formula for a valuation, this can be expressed as follows: X dividend market value at time zero. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है X dividend, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। X dividend जो बल्कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड जो कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स डिविडेंड इज द प्राइस दैट इज लेस बाय द डिविडेंड, यानी डिविडेंड को निकाल के जो प्राइस बनती है दैट इज एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड प्राइस एट टाइम जीरो किसके बराबर होगी? यानी आज के वक्त अगर आप टाइम जीरो पे फॉल कर रहे हैं और इस वक्त आप कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, तो फ्यूचर कैश फ्लोज जो ईयर 1 पे भी हैं, ईयर 2 पे भी आ रहे हैं, ईयर 3 पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे डिविडेंड्स अराइज हो रहे हैं। कहाँ डिविडेंड अराइज हो रहे हैं? टाइम 1 पे, टाइम 2 पे एंड टाइम 3 पे जो डिविडेंड्स अराइज हो रहे हैं उसको हम डिस्काउंट करेंगे एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न, और उन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके टाइम जीरो की वैल्यू पे लेके आएंगे, तो फिर हम डिटरमिन कर पाएंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू एट टाइम जीरो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड एट द शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसमें हमने क्या चीज ली? फ्यूचर डिविडेंड्स को लिया जो कि टाइम 1 पे भी है, टाइम 2 पे भी है, टाइम 3 पे भी है, और उसको डिस्काउंट किया एट शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उनको जब टाइम जीरो पे लेके आए तो वो क्या बनी? एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू एट टाइम जीरो। तो ये ही मार्केट वैल्यू इस तरह डिटरमिन होती है, और ये तरीका है टू डिटरमिन द मार्केट वैल्यू। नाउ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, द theoretical model. As per the model, the present value of all future cash dividend expected discounted at shareholder required rate of return would give the market value of equity. जितने भी कैश डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है एक शेयर होल्डर और उसको हम डिस्काउंट करें एट अ रेट ऑफ शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो हमें क्या देगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि हम पिछले स्लाइड पे देख चुके हैं। एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू अज्यूमिंग दैट अ डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड, यानी डिविडेंड के एलिमेंट को हमने प्राइस में से निकाल दिया, तो जो निकला हमारे पास रिजल्ट वो क्या शो करेगा? एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड अभी अभी पे हो चुका है, या अगर पे नहीं भी हुआ तो अगर डिविडेंड का एलिमेंट उसमें से निकाल दिया जाए, करंट डिविडेंड का जो पे होने वाला है या पे हो चुका है उसको निकाल दिया जाए, तो वो एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू आएगी। इसमें क्या क्या जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि हम आगे चल के अपने उसमें भी फॉर्मूलाज वगैरह में यूज करेंगे, उसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। इसमें आ रहा है मार्केट वैल्यू MV0, जीरो लिखा हुआ है इसके साथ, ये देखने वाली चीज है। क्या है? करंट एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू। इस जीरो लगाने से हम क्या शो कर रहे हैं कि ये एट टाइम जीरो पे जो है, यानी कि करंट मार्केट वैल्यू एट टाइम जीरो क्या होती है? करंट एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू, और मार्केट फिर आ रहा है MVN इक्वल टू एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू एट टाइम एन, यानी टाइम एन क्या हो सकता है?
आफ्टर ईयर 1, आफ्टर ईयर 2, आफ्टर ईयर 3। तो एन जो भी होगा उस पे जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे MVN से। और फिर आ रहा है DN, डिविडेंड एट टाइम N, यानी ईयर 1 पे जो डिविडेंड अनाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है शेयर होल्डर या जो अनाउंस हुआ है, या ईयर 2 पे जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है, या ईयर 3 पे जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है। तो डिविडेंड एट टाइम N। एंड इन लास्ट देयर इज R। R क्या है? शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी शेयर होल्डर जितना एस्टिमेट कर रहे हैं अपने रिटर्न को, either it can be 10%, 20%, 15%, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है या उसकी रिक्वायर्ड कर रहा है, तो उसको क्या आज से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और वो क्या है? शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। इसमें एक और चीज़ आपको बताते चलूं कि इन चीज़ों को हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट वैल्यू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं ई, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स में और मुख्तलिफ साइट्स पे आपको मुख्तलिफ वर्ड्स मिलेंगे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, और उसको अगर वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए वो वही चीज़ है। मार्केट वैल्यू को हम ई से भी शो कर सकते हैं, बाज़ बुक्स में और बाज़ जगहों पे ये ई लिखा जाता है, और हमारी भी स्लाइड्स में ये ई शायद आए आगे। तो मार्केट वैल्यू यानी इक्विटी की मार्केट वैल्यू जब आएगी तो हम कैपिटल ई से उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो DN यूज किया गया यहाँ पे, आगे चल के D0 भी आएगा, यानी डिविडेंड एट टाइम 0, यानी कि करंट डिविडेंड। और जो ये R यूज हुआ है यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, ये रिप्रेजेंट किस तरह हो रहा है? R इक्वल टू KE, इस तरह भी प्रेजेंट हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। ई शो कर रहा है इक्विटी को और के रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रिटर्न को। तो यहाँ पे बताने का इन सब का पर्पस ये है कि अगर आप किसी और बुक को रेफर करते हैं या किसी वेबसाइट को देखते हैं, या आके आपके सामने अगर ये आ जाती हैं चीज़ें मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट की सूरत में, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और ये चीज़ें वही प्रेजेंट कर रही हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये यूज़ होंगे, और इनका मतलब हमने यहाँ पे देख लिया कि वो किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक आपके स्क्रीन के पे मुख्तलिफ दो फार्मूलाज आ रहे हैं कि अगर हम उसको डेफिनेशन को उठाएं या डेफिनेशन को यूज़ करें तो उसको प्रेजेंट करें फार्मूला की सूरत में, क्योंकि आप पीछे कैश फ्लोज की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना देख चुके हैं। तो अगर उसको फार्मूले में लेके आए वही कैश फ्लो वाले जो तरीका था उसको यूज करते हुए, तो क्या बनेगा? मार्केट वैल्यू एट टाइम 0 किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एट टाइम 1 जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसको हम डिस्काउंट करें एट रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न R, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और टाइम 1 पे जो डिविडेंड अनाउंस हुआ ये आ गया 1। इसी तरह टाइम 2 पे जो डिविडेंड अनाउंस हुआ वो आ गया 2, और इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 लेके आए हैं क्योंकि इट इज पीरियड 2 जो कि N से था। क्योंकि हम जब हम कैश फ्लोज को डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को जो निकालने का तरीका समझा था वो था प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जो भी कैश फ्लोज थे उसको हमने मल्टीप्लाई कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई किया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज टू द पावर n, यानी कैश फ्लोज अगर ईयर 2 में जनरेट हुए तो हमने जो मल्टीप्लाई किया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई जो था कॉस्ट डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट, और रेज टू द पावर 2 रिप्रेजेंट ईयर, यानी एट टाइम 2 ईयर मंथ या जो जिस फॉर्म में भी कैश फ्लोज है। और इसी तरह ये फॉर्मूला यूं कंटिन्यू चलता रहेगा ईयर बाय ईयर। ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 के डिविडेंड है, ये टाइम 3 के डिविडेंड है, ये टाइम n के डिविडेंड है, और ये
एट टाइम ऑफ सेल जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो जो आपको इन्वेस्टर को मिलेगी, तो इन तमाम कैश फ्लोज को क्लब किया जाए और उसको रेस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट किया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट मार्केट वैल्यू डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय MV0 या फिर E। तो इस कैश फ्लोज को रेस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट्स के साथ जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई और डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय E और MV0। और जैसे कि हम परपीचुइटी को भी पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने कैश फ्लोज में, अगर परपीचुइटी में कैश फ्लोज हो, परपीचुइटी क्या था कि कैश फ्लोज सेम कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 से लेके अनलिमिटेड टाइम तक जो इन्वेस्टर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है जो कैश फ्लोज उसे इन्वेस्टमेंट से जनरेट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे और अनलिमिटेड होंगे, और यानी फोरसीबल फ्यूचर तक उसे सेम कैश फ्लोज मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड के केस में जो शेयर होल्डर है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड उसे मिलता रहेगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और सो ऑन, जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट रखता है। और कब तक रखता है वो डिटरमिन अभी नहीं कर सकता, तो यानी कांस्टेंट डिविडेंड उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलते रहेंगे, तो इट इज कॉल्ड परपीचुइटी कैश फ्लोज। और यहाँ पे परपीचुइटी डिविडेंड होगा, तो उसका फॉर्मूला भी वही है जो कि हम परपीचुइटी कैश फ्लोज में देख चुके हैं। इफ द डिविडेंड इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, दिस इज परपीचुइटी दैट सिंप्लीफाइज टू, जैसा कि हम उसके फॉर्मूले देख चुके थे, इस यहाँ पे भी वही चीज यूज हो रही है कि जो करंट मार्केट वैल्यू है या करंट जो प्राइस निकलेगी वो निकलेगी मार्केट वैल्यू है टाइम 0 इक्वल टू डिविडेंड जो कि कांस्टेंट है और डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि उसका भी फॉर्मूला यही था परपीचुइटी का कि कैश फ्लोज को हमने डिवाइड कर दिया था एट बाय आर, ये जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या उसका डिस्काउंट रेट है जो भी। तो वही कैश फ्लोज की टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे भी यूज हो रही हैं और उसी के थ्रू ये जो करंट प्राइस निकलेगी फ्यूचर कैश फ्लोज को देखते हुए, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को देखते हुए, दैट विल बी द मार्केट वैल्यू और करंट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमने आज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की जो बेसिक चीजें थी वो देख ली। उससे पहले हमने वैक की बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया कि वैक क्या होता है, वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स को देखने होते हैं, रिस्कीनेस को, कैश फ्लोज को। और उसके बाद हमने डिविडेंड को थ्योरेटिकल मॉडल को डिस्कस करना शुरू किया था। अभी हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो डिविडेंड मॉडल और थ्योरेटिकल मॉडल से ही स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।